Hello students, how are you all? I hope you are perfectly fine and doing your studies at your home. Students, this is Saumitri Yadav, Assistant Teacher of Lakshmi Prasad Memorial Public School, which is situated in Golam Bazar, Gorakhpur. Students, I am here with a new online video class in which we will discuss our chapter number 4, that is the prodigal son. So let's start. Firstly, the prodigal son. What is the meaning of prodigal son? The meaning of prodigal is a person who spends too much. Okay, a person who spends too much. This is the meaning of prodigal, and in this story we will read about a son. Okay, we will read about a son who spends too much. So let's start. The prodigal son is a famous parable taken from the Bible. Parables are short, simple stories that teach a moral lesson. Bible has many parables which sum up the teaching of Jesus and the prophets in a way that everyone can understand. Read this heartwarming tale with its message of love and forgiveness. So students, in this chapter we are reading about a prodigal son. Okay, and this prodigal son यानी this chapter is a famous parable. ये एक famous parable है and that is taken from the Bible. It is a religious book of Christians like Hindus has a religious book that is Gita. Okay, like that Christian has a religious book and that is Bible, and this story is taken from that Bible book. Parables are short, simple. What is the meaning of parable? Parables are short, simple stories, and these stories teach us moral lessons. Now the Bible has many parables. Bible में बहुत सारी छोटी छोटी and simple stories हैं which sum up the teaching of Jesus, जिसमें जीसस की शिक्षाएँ and also the prophets in a way that everyone can understand. और इस तरह की छोटी छोटी प्रथाएँ हैं और कहानियाँ इसमें दी गई हैं जिन्हें सारे लोग बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नाउ रीड दिस हार्ट वार्मिंग. हार्ट वार्मिंग मीन्स जो आपको अच्छी लगे, जो आपके दिल को छू जाए. ओके, हार्ट वार्मिंग टेल है ये. एंड विद इट्स मैसेज. व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम, दिस chapter? The message of this chapter is of love and forgiveness. So let's start. A rich farmer. By this word we can understand that this is a story about a rich farmer and he had two sons who worked with him on his farm. ये उसके दो बेटे हैं और वो उसके साथ फार्म में काम करते हैं. वन डे द यंगेस्ट सन सेड टू हिज फादर. उसने यंगर सन ने अपने फादर से कहा, व्हेन यू डाई, जब आप मर जाएंगे, हाफ ऑफ एवरीथिंग यू ओन विल बी माइन. आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका आधा हिस्सा, यानी आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसका आधा हिस्सा वो मेरा हो जाएगा. गिव इट टू मी नाउ. आप मुझे ऐसा अभी दे दीजिए, सो दैट, ताकि आई कैन गो ऑफ, मैं जा सकूँ, एंड हैव अ गुड टाइम, और मैं इंजॉय कर सकूँ. सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ रिच फार्मर. रिच फार्मर हैड अ टू सन्स, ओके, who worked always with him on his farm. And one day one younger son said to his father that, give me your half of your property, I will spend it. Okay, I will go some other places and enjoy at their place. Okay, so what happened next? The father loved his son and did not like to see either of them अनहैप्पी. ओके, फादर अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे और वो उन्हें अनहैप्पी नहीं करना चाहते थे. सो ही काउंटेड हिज मनी एंड गिव हाफ ऑफ इट टू हिज यंगर सन. इसलिए उसने जो है अपने मनी को काउंट किया और जितना उसके पास मनी था उसमें से आधा हिस्सा उसने यंगर सन को दे दिया. अ फ्यू डेज लेटर the son packed his belongings means सामान, ओके, goods, and the bags of gold. उसने बैग ऑफ गोल्ड और belongings कुछ अपना सामान like clothes, food, okay, he packed his belongings and also he packed his bag of gold. Mounting his horse he waved goodbye to his father and brother and set off. ओके, जैसे ही वो माउंटिंग हिज हॉर्स, अपने घोड़े पे चढ़ा, उसने अपने फादर और अपने ब्रदर को गुड बाय कहा एंड सेट ऑफ, और आगे चला गया.
After traveling for many months, he reached a foreign country. After traveling for many months, उसने कई महीनों तक ट्रैवलिंग किया. And after traveling, he reached a foreign country, deciding to stay here for a while. कुछ समय उसने डिसाइड किया कि वो कुछ समय तक यहाँ पे रुकेगा. He spent some of his gold on a large and splendid house. Okay, उसने अपने कुछ मनी उसने spent some of his gold. गोल्ड का कुछ हिस्सा जो है उसने लार्ज एंड स्प्लेंडेड हाउस पे खर्च कर दिया. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्प्लेंडेड? द मीनिंग ऑफ स्प्लेंडेड इज़ excellent or very impressive. Okay, so he spent some of his gold on a large and splendid house. Now he spent his gold on clothes for himself and on present for his new friends who seemed to like him. उसने अपने गोल्ड का कुछ हिस्सा जो है कपड़ों पे स्पेंड किया और ऑल्सो ही स्पेंड हिज गोल्ड ऑन प्रेजेंट्स. कुछ उसने गिफ्ट्स खरीदे किसके लिए? फॉर हिज न्यू फ्रेंड, अपने न्यू फ्रेंड के लिए. एंड दैट न्यू फ्रेंड वॉज सीम टू लाइक हिम. सीम टू लाइक हिम मीन्स यानी वो भी उसी की तरह बहुत ही प्रोडिगल फ्रेंड था. मीन्स बहुत ज़्यादा खर्चीला था, इसलिए दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बने. He thought that gifts would make them like him even more. He thought that उसने ये सोचा gifts would make them, गिफ्ट जो है वो उसी की तरह जो है बना देंगे. He invited all his new friends to his house for feast. उसने अपने घर पे अपने सारे न्यू फ्रेंड्स को फीस्ट मीन्स दावत. ओके, या फूड पे जब इससे आप डिनर करते हैं तो किसी को इनवाइट करते हैं, वैसे ही उसने अपने फीस्ट पे नए घर में अपने न्यू फ्रेंड्स को बुलाया. वी समटाइम्स वेंट ऑन ऑल नाइट. दे वर ऑलवेज लॉट्स ऑफ गुड फूड, म्यूज़िक एंड डांसिंग. देयर वॉज ऑलवेज लॉट्स ऑफ गुड फूड. वहाँ पे हमेशा एक अच्छा भोजन, म्यूज़िक और डांसिंग होता रहता था. स्पेंडिंग सो फ्रीली हिज गोल्ड वॉज सून ओवर. बेटा जब आप किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे तो एक ना एक दिन तो फिनिश हो ही जाना है. ओके, जो चीज़ें आप जैसे आपके फ़ादर ने आपको 20 रुपीज़ दिया. ओके, और आपके फ़ादर ने आपसे कहा कि 10 डेज़ तक आपको इस 20 मनी को चलाना है. ओके, तो और अगर आप 5 डेज़ में उसे फिनिश कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है? 20 रुपीज़ हैं, ज़्यादा दिन तो चलेंगे ही नहीं, 10 दिन तक कैसे चलेंगे? तो अगर ज़्यादा आप खर्च करेंगे तो आप उन्हें 5 डेज़ में ही आप पूरा फिनिश कर देंगे. लेकिन अब आप जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर उसे खर्च करते हैं तो वो पैसा 20 रुपीज़ भी आपका 10 डेज़ तक चल जाएगा. सो स्पेंडिंग सो फ्रीली द गोल्ड वॉज सून ओवर. जो गोल्ड था वो फिनिश हो गया. इन लेस दैन 2 years ही हैड टू गो टू मनी लैंडर्स फॉर मोर गोल्ड. मनी लैंडर्स मीन्स ऐसे पर्सन जो आपको उधार देते हैं. ओके, इन लेस दैन 2 years, 2 साल से भी कम सालों में उसे जो है मनी लेंडर के पास जाना पड़ा. किसके लिए? गोल्ड के लिए. सून ही हैड टू सेल ऑफ हिज हाउस टू पे हिज डेट्स. उसे अपना घर भी बेचना पड़ा अपने डेप्ट को चुकाने के लिए. ही हैड नो मनी एंड नो वेयर टू लिव. ना तो उसके पास मनी था और ना ही उसके पास रहने के लिए कोई घर था. क्यों? क्योंकि बेटा उसने क्या किया था? डेप्ट लिया था, कर्ज़ लिया था और उसे अपना घर जो है डेप्ट में चुकाने के लिए अपना घर भी बेचना पड़ा था. इसलिए अब ना तो उसके पास मनी था और ना ही रहने के लिए कोई घर था. ही आस्क्ड हिज फ्रेंड फॉर हेल्प. उसने अपने फ्रेंड से हेल्प मांगी बट दे जस्ट लाफ्ड एंड कॉल्ड हिम अ फूल. लेकिन वो उस पर हंसे और उसे मूर्ख बताया. अनहैप्पी एंड अलोन ही ट्राई टू अर्न मनी to buy food, but there was a drought in the country as it had not rained for months. What happened बेटा? अनहैप्पी एंड अलोन. वो अनहैप्पी था एंड अलोन, अकेला था. ही ट्राई टू अर्न मनी टू बाई फूड. उसने बहुत कोशिश किया ताकि वो फूड खरीद सके. बट देयर वॉज अ ड्रॉट. वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था. ड्रॉट बेटा जहाँ पे पानी नहीं होता है, बारिश नहीं होती है तो वहाँ सूखा पड़ जाता है. मीन्स पानी की कमी हो जाती है. और जिस कंट्री में वो रह रहा था तो वहाँ पे ड्रॉट था, सूखा पड़ा हुआ था. एज इट हैड नॉट रेन्ड फॉर मंथ्स. कई महीनों से वहाँ पे बारिश नहीं हुई थी. क्रॉप्स बर्न्ड बाय द सन. जो क्रॉप्स थे वो सन के द्वारा जल गए थे. एंड द पीपल वर स्टार्विंग. और पीपल जो थे वो भी भूख से मर रहे थे. ही सर्च्ड एवरीवेयर फॉर वर्क. उसने काम के लिए हर जगह तलाश किया. एट लास्ट अ फार्मर गेव हिम द जॉब ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज हर्ड ऑफ शीप. उसने एक फार्मर ने अपने उस लड़के को एक काम दिया. क्या काम था बेटा? कि वो हर्ड ऑफ शीप की लुकिंग करेगा.
ओके, लुक आफ्टर करेगा मीन्स उनकी केयर करेगा। ओके, उसे एक जॉब मिल जाता है फार्मर के पास। कौन सा जॉब था? उसे शीप की केयर करनी थी। द ओनली वेज द फार्मर पेड हिम वॉज अ स्मॉल प्लेट ऑफ फूड एवरी डे। उसको बेटा मजदूरी में क्या मिलता था, क्या पैसा मिलता था? केवल 1 प्लेट जो है उसे फूड मिलता था। समटाइम ही वॉज सो हंग्री दैट ही एट द शीप्स फूड। कभी कभी इतना भूखा रहता था बेटा वो कि वो शीप के भी भोजन को खा जाता था, टू सेटिस्फाई हिज हंगर, अपनी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए। So students, that's it for today. In the next video lecture we will cover the remaining part of the story. Till then you will read this chapter at your home. Goodbye everyone.